Hello, students, and welcome back. Today, we are going to share you the example of discursive passages which will come in the term 1. This is part of the reading section of the latest syllabus published by CBSE for term 1. This again will be MCQ based, but इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. जो passage होगा that will be an unseen passage and sometimes it can be a little challenge. But don't worry, मैं आप सब लोगों को कैसे discursive passages को क्रैक करना है so that you get maximum marks मैं आपको गाइड करूंगा and I hope आपको ये एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा. And if you like my videos, as usual, keep on liking them, sharing them with your friends and ask them to subscribe to my channel so that इस this type के videos जो मैं है आपके लिए बना रहा हूँ, these help you to get good marks in term 1 also. Let's quickly begin. So we are, as I said, it will be part of reading and I'll be covering in this video discursive passage. I will try to pick at least 2, or if time goes beyond, I will divide this video into 2 parts with 1 discursive passage each. आप ये जो पैसेज है you can view in my blog also, जिसका लिंक आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा. So let's quickly begin without wasting much of time. So the first question or the first example we are taking for discursive passage is you will get the instructions that you have to read the passage below. This will be roughly for 450 to 500 words. तो सबसे important आपका जो काम है वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से इस पैराग्राफ को सबसे पहले पूरा पढ़ना है बिफोर जंपिंग स्ट्रेट टू क्वेश्चंस. आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें और कीप अ पेंसिल हैंडी विद यू, जिससे कि आप जब पढ़ रहे होंगे यू मार्क द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और स्टेटमेंट्स विच यू विल नोटिस वाइल रीडिंग. शुरू करते हैं. द चॉइसेस वी मेक ऑन डेली बेसिस, वेयरिंग अ सीट बेल्ट, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, करेक्टली और पर्पसली स्टेइंग out of any dangerous situation can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances. You and I need to make a decision that we are going to get our lives in order. Exercising self-control, self-discipline, and establishing boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do. A life without discipline is one that's filled with carelessness. We can think it's kind of exciting to live life on the edge. We like the image of, yeah, that's me, living on the edge, woo-woo. It's become a popular way to look at life. But if you see, even highways have lines which provide margins for our safety while we are driving. If we go over one side, we'll go into the ditch. If we cross over to the line in the middle, we could get killed. And we like those lines because they help to keep us safe. Sometimes we don't even realize how lines help to keep us safe. I'm not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits. I felt horrible physically most of the time. I used to tell myself I know I have limits and that I have reached them. But I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. I ran to doctors trying to make myself feel better through pills, vitamins, natural stuff, and anything I could get my hands on. Some of the doctors would tell me it's just stress that just made me mad. I thought stress meant you don't like what you do or can't handle life, and I love what I do. But I kept pushing myself, traveling, doing speaking engagements and so on, simply exhausting myself. Finally, I understood I was living an unsustainable life and needed to make some changes in my outlook and lifestyle. You and I don't have to be like everyone else or keep up with anyone else. Each of us needs to be exactly the way we are, and we don't have to apologize for it. We are not all alike, and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure. तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है. आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है. मैंने इससे पहले ये नहीं पढ़ा था. मैं आपके साथ रियल टाइम में पढ़ रहा हूँ और इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे. तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा पैराग्राफ क्या है कि दैट वी शुड स्टे इन लाइन, हमें लिमिट्स में रहना चाहिए, हम सब एक जैसे नहीं हैं. सो ये एक जिस्ट है पूरे पैराग्राफ का.
अब हम कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये ट्रिक है और टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं. द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ. तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं, पहले आपने देखना है लिविंग ऑन द एज, इसमें यहाँ पे मेंशन किया है. तो आप अपने पैराग्राफ में जाएंगे दोबारा और लिविंग ऑन द एज देखेंगे कहाँ पे लिखा है. वी लाइक द इमेज ऑफ, या दैट्स मी, living on the edge. It's become a popular way to look at life. So, it's become a popular way to look at life. And we like the image of living on the edge. ये दो चीज हमने देख ली. Let's see options क्या क्या है. Okay. Constant need for something different. Population being much younger, exhausting effort to make changes, strong tendency to stay within our limit. तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे इसमें ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं मेरे को, तो आपको भी लग रहे होंगे. अगर ऐसा आपका एग्जाम में आ गया तो आपका तो ये नंबर गया, या एटलीस्ट ये ऑप्शन आपका कम हो गया. लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप. आपको देखना है कैसे इसको सॉल्व करना है. तो आप समझिए, द रीजन वाई लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर. लिविंग ऑन द एज मतलब कि हर चीज एक लिमिट से बाहर जाके करनी है, एकदम एंड में करनी है. क्यों पॉपुलर हो गया है? अब हम दोबारा पैसेज पे जाते हैं. ओके, सो ये तो हमने पढ़ ही लिया कहां पे है. वी लाइक द इमेज ऑफ, या लिविंग ऑन द एज. इससे पहले कहीं पे लिखा हुआ है इसके बारे में why it is popular? No. We can think it's kind of exciting to live life on the edge. तो एक तो ये रीजन है कि it is exciting. It's become popular way to look at life. क्यों? क्योंकि it is something which is not usual, unusual है. अब हम देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है. कॉन्स्टेंट नीड ऑफ समथिंग डिफरेंट, यानी कि हमें हमेशा लगता है कि हम कुछ अलग करें. ये एक ऑप्शन हो सकता है. दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन बीइंग मच यंगर. तो पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ पे एज के बारे में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इस पैराग्राफ में, तो ये नहीं हो सकता आंसर. इसको आप छोड़ देंगे. एग्जॉस्टिंग एफर्ट टू मेक चेंजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है कि चेंजेस के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है. स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू स्टे विद इन अवर लिमिट्स, ऐसा भी नहीं, टेंडेंसी तो है नहीं, सब लोग लिमिट से बाहर जाना चाहते हैं, इधर लिखा है. तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, students, the next question is choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. तो इन quotes को आपको रिलेट करना है इस पैसेज से कि कौन सा बेस्ट मैच करता है. It's all about quality of life and finding a happy balance between work and friends. That is by Philip Green. I don't think so, ये तो नहीं मैच करता है. To go beyond is as wrong as to fall short, Confucius. ये भी नहीं है. Life is riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ये भी नहीं है. Balance is not something you find, it is something you create, by Jana Kingsford. बिल्कुल ये मैच करता है, बिकॉज यहाँ पे पैसेज में यही बताया गया है that we are not alike. We need to not do what everybody else is doing. We should be doing what we are supposed to do. So this option suits that balance is not something you find, it is something you create. So we create balance in life, and that is the central idea, and that is the correct answer also, option 4. Okay, next question. So students, next question है, which of the
characteristics are apt about the writer in the following context. I know I have limits and that I have reached them, but I'm going to ignore them and see if or how long I can get by with it. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये जो राइटर है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये 2-3 लाइंस का मतलब क्या है. इसमें ये राइटर कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं और मैं उस लिमिट्स में पहुंच चुका हूँ. लिमिट मतलब जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे जा रही है. आपको पता है कि आप 80 की स्पीड पे जा रहे हैं और यू हैव रीच्ड देम, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मैं कितनी और आगे जा सकता हूँ और स्पीड बढ़ा सकता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा? बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम. अगर आप बहुत तेज़ जा रहे हैं और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कर रहे हैं. सिमिलरली इसी 2 लाइन में वो हम देखेंगे. नेग्लिजेंट, डेफिनेटली नेग्लिजेंस तो है. तो अब मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में भी बताया था, जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आते हैं जिसमें से आपको 1 से 2 ज़्यादा ऑप्शन का कॉम्बिनेशन होगा, तो बड़ा सिंपल रूल है. जो आपको बिल्कुल पता हो कि वो मैच करता है, पहले आप उसको पिक कर लीजिए. अब हमने पहला वर्ड पिक कर लिया नेग्लिजेंट, ये तो पक्का मीट करता है. तो देखेंगे 1 नंबर कहाँ कहाँ पे है. 2 एंड 5 में नहीं है, 3 एंड 6 में नहीं है, 1 एंड 4 यानी कि ऑप्शन सी में है, 2 एंड 3 में नहीं है. तो मोटा मोटा आपको आंसर एक्चुअली मिल गया है, ये ऑप्शन सी ही होना चाहिए. फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं. 1 एंड 4, 4 क्या है? रेकलेस. अगेन दिस इज ऑल्सो मैचिंग what the characteristics have been mentioned in these 2 line. तो नेग्लिजेंट एंड रेकलेस आपका ऑप्शन है सी और यही आपका करेक्ट आंसर है. अगर आप देखेंगे बाकी ऑप्शन, इनडिसाइसिव मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसका नहीं मतलब है. पर्पजलेस, इसमें पर्पज का कोई मतलब ही नहीं है. पेशेंट मतलब ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता है. तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, नेग्लिजेंट एंड रेकलेस. That is the correct answer. Yes, that is the correct answer. Let's go to the next question. Which of the following will be the most appropriate title for the passage? आपको टाइटल सोचना है. Much too soon, बहुत जल्दी कुछ हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा. Enough is enough, बस बहुत हो गया, ये भी नहीं है. ये तो कभी कोई परेशान हो जाता है, कोई चीज़ कर करके तंग हो जाता है तब करता है. How much is too much, मतलब कितनी लिमिट तोड़ सकते हैं, ये भी नहीं है. आई थिंक हाउ मच इज़ टू मच, मतलब आप कितनी लिमिट तोड़ सकते हैं. दिस समहाउ मैचेस. हैव एनफ टू डू, क्या आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए? नहीं. तो आई थिंक वी हैव फाउंड द राइट टाइटल आउट ऑफ दिस ऑप्शन. इट विल बी हाउ मच इज टू मच, यानी कि आप कितनी लिमिट तोड़ सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस. पोटेंशियली होता है जिसमें दम हो कुछ आपको हार्म पहुंचाने का. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसमें आपको हर्ट हो सकता है. रेफर्स टू सर्कमस्टेंसेस दैट कैन सर्टनली बी डेंजरस, यानी कि सर्टनली मतलब पक्का. पोटेंशियली पक्का नहीं होता है, पोटेंशियली यानी कि हो सकता है, चांसेस आर हाई. तो सर्टनली बी डेंजरस तो नहीं है. बी फेयरली डेंजरस, बी फेयरली डेंजरस वी कैन से, बट बिल्कुल नहीं. पोटेंशियली तो होता है कि पॉसिबल है कि आपको हार्म हो जाए. बी पॉसिबली डेंजरस, यस दैट इज एग्जैक्ट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. पोटेंशियली होता है पॉसिबली, सो बी पॉसिबली डेंजरस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेल्डम बी डेंजरस, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता. तो आंसर फॉर द स्टूडेंट्स इज बी पॉसिबली डेंजरस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Select the option that makes the correct use of unsustainable as used in the passage to fill in the blank space. Unsustainable होता है जिसको सस्टेन ना कर पाए, जिसको हम कंटिन्यू ना कर पाए. In the long run, the unsustainable officials followed emergency procedures. नहीं, ये तो नहीं कर सकता. इन द लॉन्ग रन द अनसस्ट, ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. एमरजेंसी प्रोसीजर्स वर अनसस्टेनेबल और अनसस्टेन बाय द ऑफिशियल, नहीं ये भी नहीं हो रहा है. ऑफिशियल्स रिपोर्टेड एन अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट्स, ये भी नहीं बन रहा है. ऑफिशियल्स एडमिट
that the emergency system is unsustainable in the longer run. Yes, ये मीट कर रहा है. सो वी हैव द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑफिशियल ने एडमिट किया जो इमरजेंसी सिस्टम है अनसस्टेनेबल, मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे इन द लॉन्गर रन. दैट इज द करेक्ट आंसर. Oh yes. Let's go to the next question. The author attempts to dash the readers through this write-up. तो ऑथर यहाँ पे क्या अटेम्प्ट कर रहा है? उसने बताया है कि मैं अपनी लिमिट से बहुत दूर चले जाता था, मैं बैलेंस नहीं रखता था, बट हमें रखना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए. तो ये क्या होती है? आप किसी को कुछ बताते हैं उनके भले के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिब्यूक, बिल्कुल नहीं. क्वेश्चन भी नहीं कर रहा. ऑफर एड्स टू, नहीं. हेल्प भी नहीं कर रहा है. ऑफर एडवाइस टू द रीडर्स, यस. सो ऑथर अटेम्प्ट्स टू ऑफर एडवाइस टू द रीडर्स थ्रू दिस राइट अप. यानी कि एडवाइस रीडर्स को दे रहा है ऑथर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द ऑथर यूजेस colloquial words such as yeah and woohoo. Which of the following is not a colloquial word? Okay students, colloquial words वो words होते हैं जो आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं. आप उसको नॉर्मल फॉर्मल इंग्लिश में नहीं लिखते हैं. जैसे कि ये आप लिखेंगे इंग्लिश में ऑफिस में कि ये आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. ईमेल में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. वूहू ये भी नहीं लिखेंगे. आप बोलते हैं बट नॉर्मली यू डोंट राइट दिस वर्ड्स इन फॉर्मल लेटर्स. तो हमें ऑप्शन है कि इसमें से कौन से कॉलोकियल वर्ड नहीं है. हुक्ड, ओह आई एम हुक्ड ऑन टू दिस बैड हैबिट. आप फॉर्मल लेटर में नहीं लिखेंगे. सो दिस इज अ कॉलोकियल वर्ड. गाय, ओह आई लाइक दैट गाय. आप ये भी नहीं लिखेंगे. प्लीज ब्रिंग माई स्टफ, ये भी आप लेटर में नहीं लिखेंगे. डोंट गिव मी स्ट्रेस. Yes, that is correct. Stress is a word which is not a colloquial word. You can use this stress word in writing a letter or in written English. So answer is D, stress. Okay, that's correct. Let's go to the 9th question. What does the author mean when he says to get our lives in order? To get our lives in order, अपनी lives को ठीक करो, उसको करेक्ट करो. क्या मतलब है इसका? ऑप्शन है टू रिज्यूम अवर लाइफ, अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, नहीं. टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ, नहीं, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी नहीं बोल रहा है. टू रिबिल्ड अवर लाइफ, ये भी नहीं कह रहा है. टू कंट्रोल अवर लाइफ, यस, दैट मीन्स दैट हमें अपनी लाइफ कंट्रोल करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए. दैट इज वॉट ही सेज, टू गेट अवर लाइफ इन ऑर्डर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन. ओके, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स the meaning, two meanings of outlook as used in the passage. तो स्टूडेंट्स ये भी वैसा ही है जिसमें कि 2 या 3 ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है. तो आउटलुक मतलब कि जो पैसेज में यूज किया है वर्ड, उसके हिसाब से क्या है. आउटलुक होता है कि हम कैसा नज़रिया है, कैसे हम देखते हैं किसी चीज़ को. आउटलुक टुवर्ड्स माई लाइफ इज़ वेरी इंस्पायरिंग. आई सी लाइफ विद एन आउटलुक ऑफ पॉजिटिविटी. सो उसका मतलब ये होता है, पैसेज में ऐसे यूज़ किया है, अ पर्सन्स इवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, कि एक इंसान अपनी लाइफ को इवैल्यूएट कर रहा है. नहीं, दिस इज नॉट मीन. तो मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको ऑप्शन बिल्कुल पक्का लगेगा उससे आप शुरू करना. अ पर्सन्स एक्सपीरियंस इन लाइफ, नहीं, ये भी नहीं होता है. अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ, यस, ये पक्का है. अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ. तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि 3 ऑप्शन कहाँ कहाँ पे चूज हुआ है. 1 and 4, 2 and 3. तो बी, अ पर्सन एक्सपीरियंस लाइफ, ये तो नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देते हैं. 3 and 5, सी ऑप्शन में देखते हैं क्या है. अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स लाइफ. और 5 क्या है? अ पर्सन्स जनरल एटीट्यूड ऑफ लाइफ. दैट इज करेक्ट. सो दी ऑप्शन हमें मिल गए हैं 3 and 5. तो इसका ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में. तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको जो बिल्कुल श्योर हो उसको पिक करें और उसके बाद आप उसको चूज करें. So students, 2 more questions for this passage. Let's quickly finish them. The author explains the importance of discipline and boundaries in our lives using the examples of. तो हमने पैसेज में पढ़ा है
कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में ऑथर ने लिखा है। कैसे लिखा है हम इसमें से चेक। रोड एक्सीडेंट्स तो मेंशन नहीं करे हैं, ट्रैफिक रूल्स भी मेंशन नहीं करे हैं, लाइंस ऑन द हाईवे मेंशन किया है। ऑथर ने लिखा है कि जैसे हाईवे में लाइंस होती हैं वो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, वो हमारे को सेफ रखने के लिए होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो डिच में गिर जाएंगे, लेन चेंज करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे। तो ऑथर हैज़ explained the importance of discipline and boundaries by the examples of lines on the highway. And students, that brings to the last question of this passage. ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, so I will try and pick the next passage in the next video. What is the message conveyed in the last paragraph of the passage? Love what you do, love yourself to others, be the best version of yourself or be yourself. तो हम एक बार लास्ट पैसेज पढ़ते हैं। paragraph. So last paragraph of the passage is, you and I don't have to be like everyone else. हमें किसी और की तरह नहीं होना है, हमें और keep up with anyone else. औरों की तरह हमें लड़ाई भी नहीं करनी है. Each of us needs to be exactly the way we are and we don't have to apologize for it. We are not all alike and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure. तो बेसिकली इसका हमें पता लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमें औरों की तरह नहीं होना है, हम जैसे हैं हमें अपने आप को अपनी लाइफ अलग से करनी है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स होगा, लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आ गया लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस हमारे हैं, लव व्हाट यू डू, लव योरसेल्फ टू लव अदर्स, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ और बी योरसेल्फ। तो जो आप करते हो उस पर प्यार करो, ये तो मैसेज नहीं दिया है। उसमें मैसेज दिया है कि आप जो आप करते हो आप वो करो, औरों को देख कर मत करो, यानी कि बी योरसेल्फ। सो करेक्ट आंसर फॉर द स्टूडेंट्स विल बी योरसेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके सॉरी, आंसर इज बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और बी योरसेल्फ भी हो सकता था, बट आई थिंक अब ये जहाँ से मैंने लिया है तो वहाँ पे ये लिखा, तो दैट कुड बी सम रीजन। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लेट्स सी अगेन द पैसेज। ओके, वी आर नॉट ऑल लाइक एंड वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन एंड हाँ, मतलब बेस्ट वर्जन तो नहीं लिखा है। या आई कैन पिक बी योरसेल्फ ऑल्सो, बट ठीक है, बेटर ऑप्शन इज बी best version of yourself. So students, this brings to the end of this discursive passage discussion and tips and tricks. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, and if you like this video, do share your comments and suggestions so I can improve on the next video before I publish it. I wish you all the success and good luck for your life and exams. Thank you for watching, children. Students, bye.